तो हमारे साथ अभी आज गुलजार सिंह सिंधु जी है। हेलो तो एवरीवन। ये गुलजार भी मेरे साथ था सिडनम में, हम दोनों ने साथ में एमएमएस कंप्लीट किया। तेरा एमएमएस है कि पीजीडीएम है? ओ मैं भाई, से मेरा एमएमएस है, अच्छा। और मेरा एमएस है, उसने एमएस है मेरा। फाइनेंस में एमएमएस किया है। और अभी किधर काम कर रहा है भाई? करंटली वर्किंग इन आईसीआईसीआई बैंक एज अ क्रेडिट मैनेजर इन मिड कॉर्पोरेट ग्रुप। Let's begin with the first topic of our meeting, which is सीईटी का प्रिपरेशन। तो गुलजार तेरे साथ शुरू करते हैं। थोड़ा सा तूने कैसा प्रिपेयर किया था और तेरा सीईटी का जर्नी कैसा था और तेरा स्कोर कितना था, वो जरा लाइन से बता दे। So hello everyone, I am Gulsar and I am a pass out of Sidnam from 2020 batch. So I have done my engineering from Thakur College, Mumbai in computer engineering field, and later on I passed out in 16. So I had a gap of 2 years in which I did some part-time work and I worked in a UPSC classes in Delhi. I worked from home for that, and along with that, I prepared for my CET. Unfortunately, I could not crack any of the Indian exams in 17. So again, I took one more year of gap, and my parents were very much sympathetic and supportive, so they allowed me to take one more year of gap. And so after 2017, I again appeared in CAT, which I scored around 87 percentile. I cracked NIMS interview. I cracked NIMS exam, MAT exam, but I did not appear for the interview because I was sure I would be getting Sumaya and Sydney or something like that. So it was my over ambitious, but I luckily cracked Sydney. Otherwise, I would have been stuck in one more year of gap. And so I started preparing for CET in December 17, and I prepared from various entrance examination books, and mostly I focused on bank PO. Focus was on data interpret on DDI, puzzles and syllogisms and other tough topics. I tried to gather all the questions which I could, and I prepared them daily. I studied for around 5 6 hours. I took 1 week entire for puzzles, and I prepared the last year entire paper of CET because it was 17, CET 17 was very tough. So I wanted to understand what was the difference between the earlier years of CET and 17. So I took quite some time and I prepared for CT 17. Then I again studied the bank your latest pattern of questions, and I went through several YouTube videos and several PDFs which were relevant on that. And my main, actually I have not given any mocks for CET. I just applied for the exam, but I was so sure and I was very much confident in my ability. So without mocks also, I scored 99.91 percentile in CET, 74th rank I had, and I am an open category candidate. So after that, I got admission in Sidnim. Unfortunately, I could not get into JBMS by a few ranks. But yeah, I do not regret my decision in coming in Sidnim, and I had a very fantastic time with two of my former colleagues. So the best thing I will say is like whatever you have in hand, just go with that and just give your best. And life will always give you opportunities to get more than what you have in hand. ओके। Thank you. तो इंडक्शन के बारे में बताओ, क्योंकि मेरा फिफ्थ राउंड में हुआ था एडमिशन, तो मेरा इंडक्शन तो मिस ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो कैसा हुआ था इंडक्शन सिडनम का? सो इंडक्शन मुझे अभी भी याद है कि व्हेन आई फर्स्ट एंटर द कॉलेज, तो हमारे सीनियर्स जो थे दे वर रेडी विद like they gave us a diary, they gave us a carry bag, they gave us a pen. So that was our first experience, and we just entered the auditorium around 6:37 in the morning, I guess. Everyone was sleepy. I yet remember Ganesh Chenpure, our batchmate, currently working in HSC Bank as a relationship manager. So he met me in the train, and we just went together because we just spoke as in तुम भी सिडनम के हो, मैं भी सिडनम का हूँ. So I remember vividly that memory. So together we went in the train and together we went to the college. And after that, we went to the auditorium and हम सब sleepy थे because after 2 3 months of gap, we had entered a professional environment and everyone was in formals. And like मेरा first experience था वो in a corporate type environment when सब लोग formals में हैं. हम्म। So वहाँ पे फिर मतलब हम लोग को फिर जो हमारे सीनियर्स है वो आके हमें बता रहे थे कि मतलब कैसे एटिकेट्स होते हैं कॉर्पोरेट में, कैसे मतलब कैसे कॉर्पोरेट एटिकेट्स होते हैं, बट हाउ वी हैव टू बिहेव इन द एनवायरनमेंट एंड लाइक किसी को भी शेव सोना नहीं है, मतलब कोई सोता क्लीन हुआ शेव रखना चाहिए, हेयर स्टाइल, ये उन्हें बाल नहीं बढ़ाने का ज्यादा, वो ड्रेस
वो पूर्ण व्हाइट शर्ट ही पहनने का, खाली काला पैंट हाँ पहनने मतलब का भी सब। या तो वहाँ पे एक्चुअली हमें पहले पहले बोला गया था, बताया गया था कि light shirts and dark pants, and socks should match the color of your शूज uh, का भी pant, and shoes should match the color of your belt. It should be either black or brown. So that was we were told beforehand, and लोगों को भी people were being sent home also, like or being told to go and purchase shirts and मतलब proper clothes if they were not wearing them as per the code of the college. So even I had a hard time purchasing those type of clothes in the shops also I had gone. So even they were not having that exact formal shirts, but yet I fortunately purchased a couple of shirts, and I had pants का तो issue नहीं हुआ था इतना. Yeah, so I remember the former CEO of Raymond's. He had come to our college. I am sorry, I don't remember his name. He was सी an ऑफ alumni of our रेमंड्स, college. इन इंडक्शन, So he, ओके, yeah, आई in the मिस। first on the first day itself. So like we were like just a few hours into college, and that person had come, and he was a very high profile person. So या I was very much astonished and like awed by his personality and his charisma. He was like full of energy, and he had spoken as in like he मतलब हम सब जग आ गए थे, like we were all a bit. So after that we had a few like हमारे जो seniors थे हम लोग को मतलब they used to give various tasks, and it was like very much interactive, and we were meeting people, we were making friends with everyone. So after that, अभी जो घर जाते थे, घर जाने के टाइम पे like we used to get emails every day as in assignments about या HR असाइनमेंट्स, and marketing. Yeah, and so we had to like complete and send them on time up to a certain हाँ time limit. So I said गोरेगांव, so ट्रेन में ही हम लोग करते थे कैसे भी करके, and gradually या like every day in induction we used to have different guest lectures around. एक हमारे जो BSc के भी एक senior person had come. Then we had a few more high level executives who had come to like attend or take our guest lectures. Gave base multiple they gave the perspective about how they had their how they made their career, how they developed themselves, and how they go grew up the ranks and reached where they are right now. या So it was a very good experience in that way. And then like we used to have tasks daily, and gradually we started making friends amongst each other. So I used to go by train daily. So I one day I was very much tired, and I remember like Ketan and Dhaval, my batchmates, they offered they were sitting in the train, and they just offered me something. They had some biscuits with them. So I was like very much tired, and बस मैंने खा लिया था उस टाइम पे, ये था कि कोई तो कुछ दे रहा है खाने के लिए, and अपना क्लासमेट ही है. तो they had asked me तुम भी सिडनी क्यों, हाँ like मैं पंजाबी हूँ, तो थोड़ा या we are simple, and people realize people understand, and they can recognize us very clearly, very यू soon. स्टैंड, So लाइक यू स्टैंड डिफरेंटली इन क्राउड, लाइक यू दूर से पता चलता है भाई सरदार घूम रहा है। हम तो या 4 6 थे अपने बैच में, तो हाँ उन्होंने फिर मतलब मुझे पहचान लिया था, एंड आई एम अ फ्रेंडली पर्सन, सो आई जस्ट वेंट विद देम, एंड उन्होंने अपना डिफरेंट शेयर किया था. So later on we used to come daily together, and we exchanged numbers, and we gradually made friends amongst each other. That time was very nice because everyone was new, everyone was from a different background. सब लोग ये था या कि नए लोग से मिल रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, सबसे इंटरेक्ट कर रहे थे, एंड बहुत कुछ सीखने मिला अलग अलग लोगों से. तो ये था कि वहाँ पे अलग अलग टास्क हमें मिलते थे, फिर कमिटीज़ थे, तो कमिटीज़ में ज्वाइन करने के लिए हम लोग को बताया गया था, एंड वी वर टोल्ड कि डू दिस टास्क, एंड वी वर डेली लाइक देयर वाज वन डे फॉर कमिटी प्रेजेंटेशन. अब सो मतलब आई हर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कमिटी एनी कमिटी. ये रहेगा ना, हर कमिटी आके प्रेजेंटेशन करेगी हमारे कंपनी कमिटी में ये है वो है, तो तुमको ज्वाइन करना है तो अप्लाई करो, ऐसा कुछ रहेगा ना। लाइक या सो हमारे ऐसे टाइम भी पे था, हुआ एंड था। हम्म। बाद में फिर जो इंडक्शन हमारा जब भी खत्म हो रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग को फिर ये था कि कमिटीज़ में ज्वाइन करने के लिए वी वर टोल्ड, एंड सो वी वर टोल्ड कि मिनिमम ऑफ द कमिटीज एंड 5 कमिटीज इफ यू वांट टू ज्वाइन. हम्म। सो वैसे मैंने तो कोई कमिटी में ज्वाइन नहीं किया था, बिकॉज आई वांटेड सम टाइम फॉर माई सेल्फ, व्हिच या आई डिड गेट एंड आई डिड नॉट गेट इन वन वे. So it was more like what I heard from the people who did go in committees. It was very much hectic, but they learned a lot by that experience, because यस they had to do various tasks, and they were very much मतलब involved in those tasks, and it was very much hectic. But they had interviews also, which they helped them later on. And I personally feel if I did attend that event, I would have learned a lot. And then we also had one event by events committee, which I remember, which we had gone to South Mumbai, and we had to go to various places, and then in those places we were finding out clues, and we were understanding कि ये clue ये होता है, ये clue वो होता है. So
वी वर बीइंग टोल्ड ऑन फोन कि मतलब ये क्लू पे जाओ, वो क्लू पे जाओ। सो हम लोग क्लू लिटरली मतलब टैक्सी में जा रहे थे हम लोग। कोई गेम था क्या? था अभी इतना, इट हैज बीन मोर देन, इट हैज अराउंड मोर देन 3 years since that event, but I don't remember very clearly, but it was in that lines, and by a social committee of our college in which we were told to go and like convince people and get funds for an NGO. So that was also very humbling. We were going and telling people, and I remember they were with me, and they both Kunal became the chairperson of the college, and Ashani also was in a very senior position. So साथ में उनके रह के भी बहुत कुछ सीखने मिला। एंड इट वाज लाइक हम जीते भी थे उस टाइम पे। सो हमारा मतलब काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी हुआ था, एंड जो इवेंट कमेटी के टाइम भी हम लोग का एक टीम का ग्रुप था, तो उस टाइम भी हम जीते थे। सो अच्छा था, मतलब ऐसे कि आउट परफॉर्म करना बाकियों को एंड जीतना, मतलब वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ चुकी थी उस टाइम पे। तो देन वी वेंट टू सिलवासा, आई थिंक खानवेल सिलवासा रिसोर्ट में मैं था आफ्टर ना। द, या आई रिमेंबर। सो एंटायर बैच हैड कम, एंड हम लोग एक दिन के लिए गए थे। अराउंड वी लेफ्ट अराउंड August 15, 2018, and we came back next day evening. So it was very nice. It was the first time the entire batch went together, and बसेस में गए हम्म। थे, एंड हॉल्ट करते करते गए थे, गाने गा रहे थे बस में, नाच रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रियल विजिट था, बट वी वेंट टू अ फैक्ट्री, आई थिंक पार्ले फैक्ट्री। आई एम नॉट वो वेरी मच पार्ले श्योर में गए थे द अपन एग्जैक्ट, लोग। या याद सो है आई एम नॉट मुझे। वेरी मच श्योर द एग्जैक्ट फैक्ट्री। बट यस। वहाँ पे मतलब देख रहे थे कि सिलवासा मतलब में ही क्या था होता ना है क्या वो नहीं होता है। पार्ले फैक्ट्री। हाँ, सिलवासा के वही आईबी में था वो। हम्म। तो उसके बाद फिर हम लोग वो फैक्ट्री में भी गए थे बाद में, थोड़ा घूमे फिरे थे वहाँ पे, एंड लाइक बस लोगों से मिल रहे थे। लाइक क्या था कि मतलब ऐसे हार्डली कुछ साथ में स्पेंड हुआ था, तो बस मेकिंग बॉन्ड्स एंड जॉइनिंग ईच अदर। तो कितना इंडक्शन ओवरऑल मतलब वहाँ जाते एंड हुआ था हमारा। इंडक्शन एंड तो उस बस ये अपना था कि ट्रिप से पहले ही खत्म हो गया था ना इंडक्शन। हाँ, मतलब वही, मतलब मैं तो उसे लेता हूँ कि वो ट्रिप तक इंडक्शन मैं कंसिडर करता हम्म। हूँ कि वहाँ पे खत्म हुआ था। तो मेरे लिए तो बहुत लर्निंग था, एंड काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। आई थिंक सिडम का सबसे मेरे बेस्ट डेज बोलते हैं कि इंडक्शन में होता है, तो हाँ मैं भी उसे वैसे ही लेता हूँ। जब भी अभी भी मेरा जो फिफ्थ राउंड में एडमिशन हुआ था ना, तो शायद पूजा थी या कोई तो थी। तो उसने उसने ओके, पूछा ना कि तुम लोग नए एडमिशन हो क्या? मैं बोला हाँ, मेरा फिफ्थ राउंड में हो गया एडमिशन। शी वॉज सो जेलस, बोली कि यार अच्छा। तुम लोग बहुत लकी हो, तुम लोगों ने इंडक्शन मिस किया। बोले हमको रुलाया है बहुत इंडक्शन में। बहुत हाँ, लकी हो मतलब तुम लोगों ने लोग। कंप्लेंट भी किया था कि यार 12-1 बजे तक घर पहुँच रहे हैं, वापस सुबह 6 बजे आना पड़ता है, आपको नींद नहीं हम्म। पूरी हो रही थी। And that time, what we learned from that experience was we took it with us in the entire MBA curriculum, and even right now, I do have some things with me from those days. So I have learned from it. I have मतलब hard days से but learning था बहुत उसमें। तो वो लोग प्रिपेयर करते हर ना चीज़ अपने से को लर्न ऐसे करना चाहिए। सिचुएशंस के लिए, भाई मैनेजमेंट में तुम लोग जॉब करोगे तो ये सब होगा, ऐसा बोल के हम लोग अपने को वही बोला था ना। रात को 12 बजे 11 बजे मैसेज ईमेल डालते थे अगले दिन के लेक्चर्स का। हम लोग को भी। हाँ, तो वैसे ही मतलब एक्चुअली ऐसे ही होता है। हम्म। जॉब पे भी कभी 12 बजे तक काम होता है, हो जाता है काम कभी-कभी एक्सटेंड, बट वो वो प्रिपेयर तो करा मतलब के ऐसे लेते हैं। एक तरीके से, या सो इट इज़ ज़िम्मेदारी होती है वो तो मतलब दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट या it is like something which I don't have any issue with that, because maybe I learned from induction itself. थोड़ा स्टार्टिंग में जॉब में भी लगता था कि यार इतना लेट तक काम करना, बट हम्म। it is not a, it's a part of the game itself. So part and parcel of life, I take it in that way. And corporate, I think, is it demands that from you. So it is या। a okay, like इसे सीखने मिला, लर्निंग अच्छा था उससे। हम्म। ठीक है। मेरा तो ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, बस हम लोग को इंडक्शन के नाम पे अभी फिफ्थ राउंड में इंडक्शन खत्म हो गया तो खाली असाइनमेंट्स दिए थे। अगर टाइम पे नहीं हम्म, करो तो पैसा भरना पड़ेगा, ऐसा बोला था। तो मैंने ऑलमोस्ट किए बहुत और सारे, ये एक थे आध पैसे। दूसरा रह गया। हाँ। हाँ, पैसे सो मेरा बर्थडे उस टाइम आया था, मेरा बर्थडे आया था उस टाइम पे, तो मैंने पक्की बात थी मैं बर्थडे जाऊंगा ही नहीं कॉलेज। हाँ। तो उस टाइम मैंने अपने मेंटर, मेरा अंकुर था, अंकुर अभी जो मेरे टच में है, यू वाज अ वेरी नाइस हाँ। गाय। तो उसको मैंने बोल दिया था भाई मैं आऊंगा नहीं, एंड मैंने उस दिन पे वैसे भी भरे थे, मैंने बोला था कोई नहीं मैं आज पैसे दे दूंगा मैं। बिकॉज हम्म। बर्थडे के दिन तो मैं वैसे घर पे आराम ही किया था, उस टाइम इतना हेक्टिक था वो, बट अच्छा था, मतलब कि चलो मतलब एक दिन बर्थडे के दिन तो मतलब उसी टाइम पे आया, एंड सबों ने मुझे विश भी किया था, एंड अच्छा था काफी। मैं बर्थडे के दिन नहीं गया था, मैं बोला था कि यार एक दिन आराम करने मिलेगा, बहुत बड़ी बात है, इतना हेक्टिक होने के बाद एक हफ्ता हुआ था मेरा वहाँ पे, उसके मेरे बर्थडे आया था। वही मेरा वही एक्सपीरियंस है, ज्यादा कुछ था नहीं, खाली असाइनमेंट्स का था। एक मिनट। तो असाइनमेंट्स के ऊपर बस थोड़ा सा पैसा उन्होंने मांगा, लेकिन हमने दिया नहीं, बाद में वो भी भूल गए, फिर बात खत्म हो गई। लेकिन पब्लिक के लिए मैं बताना चाहूंगा कि भाई तुम लोग असाइनमेंट नहीं करोगे तो तुमको पैसा भरना पड़ता है।
हालांकि वही पैसे से हम लोग को ट्रिप पे लेके गए। सो दैट्स अ गुड हम्म, थिंग, हमारा पैसा कुछ उन्होंने छीन के कुछ खुद के लिए नहीं यूज किया, अपने ऊपर ही यूज होता है। ठीक है। तो सिडनी आई थिंक इन दैट वे फॉर ट्रांसपेरेंट है कि मतलब सिडनी में आपको मतलब जो भी है वो आपके सामने ही होता है। ऐसे कुछ हम्म। कम्युनिटी व्यू जो होती है एवरीथिंग इज स्टूडेंट ड्रिवन। तो दैट इज हाँ। द बेस्ट थिंग अबाउट सिडनी। यस। तो ये कि मतलब बहुत मतलब सब कुछ अच्छे से सामने आपके होता है। ऐसे कुछ आप बोल सकते नहीं हो कि यार ये जो हो रहा है मतलब पता नहीं, या तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज वेरी मच इन फ्रंट ऑफ यू। यस। यस, एवरी मच इज इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जो अंदर रहते हैं उनको पता रहता है, बाहर वालों को नहीं पता रहता है अंदर क्या चल रहा वो तो पता लग जाएगा मेरे ख्याल से अभी। है। जो लोग जाएंगे उन लोगों को पता लग जाएगा। हाँ, लेकिन इट्स अ गुड, लाइक ऐसा बुरा नहीं है यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इंडक्शन का भी बोलो, पूरा कॉलेज का भी। तो अभी अपन आते हैं कॉलेज लाइफ के ऊपर। तो तू स्टार्ट कर, कॉलेज लाइफ कैसा था तेरा सिडनम का? और एजुकेशन के बारे में बता, लेक्चर्स कैसे थे, फैकल्टीज कैसे थे कॉलेज लाइफ में? तूने कुछ एक्सट्रीम प्रोजेक्ट किया रहेगा तो, जो कॉलेज के अंदर मतलब अपना मार्केटिंग का वो था ना फ्रांसिस, उसका भी कोई प्रोजेक्ट किया रहेगा तो उसके बारे में बता अभी। कॉलेज लाइफ के बारे में बताते हुए इट इज कॉलेज लाइफ वाज मोर लाइक हेक्टिक था। मेरे लेक्चर्स के कोई टाइम नहीं फिक्स थे। कभी लेक्चर सुबह होते थे, कभी शाम को होते थे। सो हम्म। ऐसे भी टाइम आए थे कि लाइक आई टू गो होम एंड हैव सम रेस्ट एंड कम बैक बिकॉज अर्ली मॉर्निंग लेक्चर्स एंड लाइक नींद कभी पूरी नहीं होती थी। तो आई वाज टाइप ऑफ पर्सन कि आई नीडेड सम रेस्ट एंड या बिकॉज यहाँ पे लाइक 3 4 5 घंटे का गैप एंड देन लाइब्रेरी में फिर वो अपना सा रात लाइक को कितने आई वाज बजे? सबसे कभी कभी तो 10 बजे खत्म होता था लेक्चर, और सुबह फिर 7:30 बजे हाँ रखते थे ये लोग। नहीं, 8 बजे रखते थे तो शायद। वही था ना कि बिकॉज आवर फैकल्टीज वर ऑल वर्किंग सो दे वर गेस्ट फैकल्टीज द हम्म। senior faculty, so they were all working, so we had to adjust according to their या, time schedule. उनके हिसाब से So चलना that is पड़ता why था। we were we just attended lectures whenever told and whatever the correct timetable was. I remember the economics sir was very nice. I don't remember his name in first semester. इकोनॉमिक्स, ये Then जेवियर्स का प्रिंसिपल, वही so ना? I think I don't know if currently he is the principal of not or not of CBS college, but he was very nice. आई डोंट रिमेम्बर हिज So नेम। currently I am appearing for CFA exam, but yet the things which he taught me in that economics curriculum, या। I they are useful for me yet in my CFA exam study. So that person was very informative and knowledgeable. He used to give यस। practical examples. हालांकि उस टाइम पे लगता था कि यार ये बंदा मतलब थोड़ा सा like he used to like be very much into सब्जेक्ट में बहुत थे वो, एंड हम लोग क्या है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे तो इतना समझ आता नहीं था। लगता था हाँ। कि यार मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट नहीं, अभी लेकिन लगता है कि उसने जो मतलब भी थोड़ा और सिखाया ध्यान वो दिया होता। काफी सही सिखाया था, उसने इम्पोर्टेंट चीजें सिखाई, वो सिलेबस के हिसाब से नहीं जाता था, वो सबसे अच्छी बात थी। वो अपने हिसाब से मतलब करते थे, मतलब अपने वॉट एवर उनका मतलब एक मेच्योरिटी हम्म। लेवल था एंड उनको जो मतलब उनका लेवल बहुत हाई था इकोनॉमिक्स का। हम लोग तो मतलब बेसिक से भी नीचे थे, मैं तो कम से कम मैं मैं भी इंजीनियरिंग नीचे बैकग्राउंड का था, होते मेरे हुए। को भी इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं आता। आई एम इंजीनियरिंग है तो भाई। हम लोग बस वी यूज्ड टू जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड एज इन व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस, एंड घर जाके पढ़ते थे हम्म। एंड अच्छे से मतलब समझते थे, ट्राई करते थे समझने के लिए। नहीं समझ आएगा तो कोई बीकॉम के स्टूडेंट्स से मतलब जो साथ में हमारे थे जो बीकॉम बैकग्राउंड के थे मैं भी उनसे वही मतलब करता पूछ था। के। तो दीपशा नाम के फ्रेंड थे हमारे, तो उनके दीक्षा। ही वाज अ इकोनॉमिक बीकॉम स्टूडेंट, तो वी यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम हिम। सो लाइक ऐसे भी करके वी फाइंड आवर वे आउट। द बेस्ट थिंग सिडनी टॉट अस वाज दैट लाइक हैंड होल्डिंग बहुत कम था। हम्म। तो ये था कि मतलब कैसे भी करके मतलब, एंड अभी भी काम आता है ये चीज़ की, मतलब जो भी होता है ना मतलब करो, मतलब सोल्यूशन फाइंड करो, सोल्यूशन मेकर। हालांकि इंजीनियरिंग करके हमने आता है कि मतलब हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस, बट या। that was something which I grasped more in MBA. Daily assignments we had lectures sometimes 3 4 lectures a day, sometimes 1 lecture a day, वैसे मतलब उसका फ्लक्चुएटिंग था। ये फिर द भी। मेन थिंग वाज फैकल्टी वाज वेरी एक्सपीरियंस। यस। तो फैकल्टी हम लोग को ऐसे थे कि मतलब अभी कुछ फैकल्टी से थे कि मतलब दे न्यू कि हम हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो हम लोग को वो मतलब यस। ऐसे उससे मोटिवेट अस कि हम लोग वो मैनेजमेंट के स्टडी मतलब कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को हम लोग और अच्छे से हम लोग वो थे ग्रास्प ना कर अपने सके। को, अकाउंट्स के लिए जो सर थे ना, उनका नाम क्या है मुझे याद नहीं है। हाँ वो बट ही वो वाज अ सीए एकदम बाय प्रोफेशन एंड सिंपल लिविंग मैन, ऐसा नॉर्मल चेक्स वाला टी शर्ट पैंट पहन के आते थे आराम से, एक पेज दो स्केच पेन खुद का लेके आते थे, और पूरा उनके वजह से पूरा अकाउंट्स क्लियर हो गया मेरा तो।
हाँ, तो एकदम वैसे ही थे वो, मतलब सिंपल बहुत करके अभी भी मुझे पीछे याद कर है, रहे वो थे। तो बोलते भी थे कि भाई आप लोग इंजीनियरिंग वाले की इंजीनियरिंग वाले काफ़ी अच्छे हाँ हो, आप तो बीकॉम वालों से भी अच्छे हो ऐसे बोलते थे। तो बीकॉम वाले कुछ नहीं करते, इंजीनियरिंग वाले बहुत मेहनत करते हैं। तो आई रिमेंबर येट हिज या वर्ड्स। तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि यार मतलब चलो अलग बैकग्राउंड है, बट फिर भी अगर सर बोल रहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर उनको तो इतना एक्सपीरियंस है, हम तो अभी अभी ज्वाइन किए हुए हैं। फैकल्टीज बहुत अच्छे थे तो यार अपने को, फर्स्ट ईयर में तो एकदम स्टैट्स एक के नंबर थे। दूरे सर ख्याल को से अलग है, धुरे सर तो बहुत डिसिप्लिन थे। अभी हमारे डायरेक्टर, अभी कॉलेज के हमारे ये अभी सर है डायरेक्टर, डायरेक्टर है दूरे सर, राइट? and we used to every time get up and wish him Jai Hind whenever we entered the class, and या even he या used आई to have that रिमेम्बर। habit. या So and he taught us stats, मतलब जो मतलब चीज़ें, मतलब जो उन्होंने पढ़ाया, मतलब जो हमारे फैकल्टी में उस टाइम पढ़ा, बहुत चीज़ें मतलब भूल चुके हैं, बहुत चीज़ें शायद काम नहीं आते होंगे, बट काफ़ी चीज़ें याद रहती है, एंड दे यस। गो विद अस टुगेदर व्हेन वी गेट अहेड। सो concurrently with our studies, we had Puneet sir, जो मतलब हम लोग को मतलब से एडमिन ऑफ द कॉलेज he used to पुनीत teach us सर। about, हाँ, पुनीत सर वो मतलब उनका ऐसा ये था कि मतलब ही यूज्ड टू, मतलब एक उनका सब्जेक्ट भी था बिजनेस कम्युनिकेशन। वो हाँ, जीके तो लेते थे आके, तो वो आके रोज मतलब ऐसा एक एक को ऐसा रैंडमली किसी का भी उंगली उठा के उसको उठाते थे और उसको पूछते थे, भाई तू आज का न्यूज बता, कुछ आज की न्यूज़पेपर का न्यूज बता। ऐसा कंपल्सन था सबको न्यूज़पेपर पढ़ के आने का, और कॉलेज में सबको न्यूज़पेपर मिलता है। वो तीन सौ हाँ, तो रुपये एक साल बात का मैं भरा ऐड था करना अपन चाहूँगा ने। हाँ। कि इकोनॉमिक टाइम्स मतलब हमने शुरू किया पढ़ना उस टाइम पे ही, बिकॉज वी वर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो वी हैड नो आइडिया अबाउट बिजनेस न्यूज। या सो दैट टाइम वी स्टार्टेड स्टडीइंग इटी, एंड वी हैड नो आइडिया कि उसको कैसे हजम करते हैं, बिकॉज पढ़ लेंगे, इंग्लिश ही है, बट उसको फिर क्या समझे, उसे क्या उसके एनालाइज करे। हाँ, सो अभी तो वो मतलब लफड़ा इतना हो गया कुछ, था। अभी तो पीनट्स है, बट उस टाइम पे बहुत हार्ड था, एंड पुनीत सर ने फोर्स किया पढ़ने के लिए, एंड फिर जाके थोड़ा सा मतलब समझा कि मतलब क्या चीज़ें कैसे होती है। हाँ, एंड मुझे उनके भी बहुत फोर्स बार के हुआ था वजह कि से अपन ने किया, रैंडमली कुछ मुझे तो मतलब आते किया। थे अंदर क्लास के, एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि यार गुकुल सर गेट अप एंड टेल मी समथिंग अबाउट न्यूज़, एंड आई हाँ। यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज़ ही यूज्ड टू ऑलवेज कैच मी, सो आई अंडरस्टूड कि अरे मतलब ही यू आर कैच दी मी। लाइक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ब्रो। लाइक हर कोई आते टाइम भाई 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 करता था। वो सब बट चीज़ें मैं या यहाँ पे बताना नहीं भाई, चाहूँगा, वो हर तुम बता लेक्चर सकते हो। में तेरे को उठाता था वो। वो तो बता सकते हो, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगा। और उनका ये भी था कि यार अगर न्यूज़ किसी ने, समझो कि आपने 2-3 आर्टिकल्स पढ़ के आए हो, अपने प्रिपरेशन करके आए हो, एंड हम्म। इफ समवन टेल्स दैट इन योर क्लास एंड यू हैव टू से समथिंग एल्स, हाँ, अदरवाइज यू विल बी अलग कॉट। बोलना पड़ता है, राइट। सो अगर आपने उतना ही रिपीट नहीं मतलब होना पढ़ाई, चाहिए। उतना ही आपने अगर प्रिपरेशन किया हुआ और आपने किसी और ने वो बता दिया है, तो देन यू आर इन ट्रबल, बिकॉज़ देन यस। ही विल फील कि आप वही बता रहे हो जो दूसरा बंदा बता चुका है। एंड हम्म। सो हमारा फिर सेम 2 हुआ था, सेम 2 में तो थोड़ा लेक्चर्स मैंने कम अटेंड किए थे, बट अपने सेम को। 2 वाज लाइक मोर हम्म। मोर टुवर्ड्स, मतलब एकेडमिक्स उसमें और था। सेम 1 के एंड में हम लोग को फिर स्पोर्ट्स का इवेंट भी हुआ था जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया था, हम्म। एंड इट वाज गुड। जब भी सीनियर्स को हराते थे हम लोग अपने, बिकॉज हम्म। वी हैड 2 क्लासेस, एंड आई थिंक 2 और 3 थे ना, एमएस 1, एमएस 2 एंड पीजीडीएम 3 यस। हमारे डिविजन्स थे, 60-60 के एंड तीन सीनियर्स बैचेस का आई थिंक बना एक ही दिए। था। या सो टग ऑफ वॉर में तो हम जीते थे उनसे, सीनियर से, एंड जो खुशी हुई थी कि यार सीनियर्स को हराया हमारे, बिकॉज सीनियर्स वर विनिंग इन एवरी कॉम्पिटिशन एंड वी डिफीटेड देम इन सम गेम्स। सो बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे कि यार मतलब हमने हराया सीनियर्स को अपने, जो मतलब एक ये हम्म। था कि मतलब हमसे बड़े एंड लाइक हमसे आगे वालों, तो वो अलग था, वो बयान करने की चीज़ नहीं होती। सेम 2 हो गया, सेम 2 में तो इट वाज मोर टुवर्ड्स एकेडमिक्स, एंड मतलब वी हैड एन आइडिया कि कॉलेज कैसे फंक्शन करता है, हाउ थिंग्स गो हम्म। ऑन, एंड द लोड वाज अ बिट कंपैरेटिवली लेस। हमें समझ ही नहीं एक्चुअली सेम 1 कब खत्म हुआ था, हम लोग को हमारे चेयरपर्सन ने हाँ, बताया था आके, फटक से खत्म हो गया। विनीत, आई थिंक विनीत देवनानी एंड धार्मिक मासरा, तो विनीत हैड कम एंड टोल्ड अस कि इन द ऑडिटोरियम व्हेन वी वर ऑल टुगेदर कि यार आपका सेम 1 अभी खत्म हो गया है, आपको शायद पता ना हो। नहीं, एग्जाम हो गया था देन ना अपना, तो। नहीं, बट एग्जाम के पहले विनीत ने मेरे ख्याल से हाँ बताया था, एंड हाँ। एग्जाम तो दिवाली के बाद हुए थे मेरे ख्याल से, नवंबर में हम्म। हुए थे, नवंबर मिड और नवंबर एंड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम लाइन। तो हम्म। उस टाइम पे हमारे एग्जाम हुए थे, एंड फिर सेम 2 स्टार्टेड इन दिसंबर, दिसंबर टू मार्च वी हैड सेम 2 यस। वाज मोर टुवर्ड्स एकेडमिक्स, वी हैड मार्केटिंग, वी हैड एचआर। अपना कैसा है, अपने माँ बाप वैसा थोड़ा सा बिजनेस रहता है, छोटा कुछ तो रहता है, अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले इतना ये नहीं रहता है अपने को ज्यादा बात करने का वो सब। इंजीनियरिंग भी अभी चल ठीक है, तू तो मुंबई में किया, मैं तो करजत में किया इंजीनियरिंग। सब अलग, मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही अलग थी। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो फर्स्ट ईयर में ये रहता है कि ये कौन सा चूज करने का, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीम, एचआर लेने का। और अपना इंटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट तो फर्स्ट सेम में ही शुरू होता था। पहले कॉलेज शुरू हुआ, 10 दिन हुए नहीं, 10 दिन हुए नहीं कि जीईपी आ गया। लाइक चांस ही नहीं मिला सोचने का क्या करने का। मैं अप्लाई भी नहीं किया जीईपी को, क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया था
और मेरे दिल में था कि मेरे को एचआर लेने का है करके, क्योंकि अभी सिडनी में आ गए ना अपन लोग, लाइक अभी प्लेसमेंट तो 100% है। तो एचआर लिया, चल एक हम्म, दो लाख कम पैकेज मिलेगा तो एचआर फिर भी, लाइक एचआर का काम थोड़ा अलग रहता है, लेकिन मेरे लिए सूट होएगा ऐसा मेरे को लगा। वही है, अगर मार्केटिंग लेते तो अलग चीज रहता था। ठीक है, एचआर लिया इसलिए तो अच्छा अभी यूट्यूब चैनल बनाई है, वरना नहीं बनता था यूट्यूब चैनल। नहीं वो तो बहुत मेहनत की बात होती है कि यूट्यूब चैनल बनाना, क्योंकि अभी एज अ कॉर्पोरेट पर्सन आई विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट यू हैव अचीव। इट इज अ वेरी बिग थिंग। या आई हैव सो सीन हाँ, इफ पीपल, यू राइट। अभी मैं ओके। जिधर मैंने इंटर्नशिप किया, आई हैव सीन पीपल। और लाइक स्पेशली एचआर होने का फायदा ये है कि हम लोग कोई भी इंसान के पास जाके बात कर सकते हैं, उसका काम क्या चल रहा है उसको पूछ सकते हैं, उसको कोई तकलीफ है क्या पूछ सकते हैं, लाइक वी हैव अ राइट। तो मैं लिटरली सबके पास जाके बैठ के गप्पे मारता था कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे, जो मैं पहले कंपनी उधर 50 एम्प्लॉयज थे, उसमें से मिनिमम 10 लोगों के पास जाके उनका पूरा लाइफ का स्टोरी मैंने सुन के लिया था। तो देन आई रियलाइज कि लाइक इन लोग को लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, और वो जॉब छोड़ भी नहीं सकते, और जॉब के साथ और कुछ कर भी नहीं सकते, उतना काम का प्रेशर है उनके ऊपर। तो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ हो गई है उनकी, जितने भी है प्राइवेट में अभी, बहुत सारे लोगों का वही प्रॉब्लम है। तो तेरे को भी फील होता रहेगा देखो, ऑफिस में। कॉर्पोरेट लाइफ का नजरिया होता है सबका। लाइक एज आई थिंक इट इज मोर टुवर्ड्स हाउ मच यू टेक योरसेल्फ फॉरवर्ड। अगर कोई बंदा मतलब चाहे तो वो मतलब हम्म। काफ़ी मेरे सीनियर्स मेरे बैंक में हैं, दे आर लाइक वेरी मच एक्सपीरियंस एंड दे हैव अचीव्ड अ लॉट। आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, बट I think it is more as in like how much you work and how much you give, how much effort you put towards your own career and towards your own growth. If you put that effort, then you can go ahead. You can go anywhere. There's no limit to your potential. यस। So I think it depends on that also. I think luck matters a lot. Luck पे भी मतलब होता यस। है कि I know some people जो मतलब पीछे रह गए, जो मतलब they should have gone a lot more ahead as compared to their age and as compared to what they are qualified यस। as. But I think many things play a part. But I think luck and your own मतलब जो अपने अंदर जो जज्बा होता है वो मेरे ख्याल से मेन ये चीज़ें मैटर करती है। नहीं का। बाकी कॉर्पोरेट लाइफ में हाँ, काफ़ी स्ट्रेस तो होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक इफ यू वांट यू कैन वर्क इन कॉर्पोरेट, इफ यू डोंट वांट यू कैन स्टार्ट योर ओन फर्म और योर ओन और बिजनेस व्हाटएवर, यू कॉर्पोरेट कैन में डू कैसे समथिंग रहता एल्स। है, अभी अपन लोग देख अपने कैसे है, सिडनम में है तो अलग चीज है, तो अच्छा अच्छा प्रोफाइल आता है, ऐसा वो दूध के ऊपर रहता है ना मलाई, वैसे वाला प्रोफाइल्स आता है हम्म, सिडनम और जीबी वालों को, नीचे वालों को ऐसा नहीं आता है। हम्म, और इवन सिडनी में भी नहीं मतलब अच्छा वाला नहीं रहता है, वो भी प्रोफाइल 50% से ज्यादा प्रोफाइल तो वैसा था सेल्स का, जो हम लोग करना नहीं चाहते थे। तो इसमें कॉर्पोरेट में यही है, लाइक स्टार्टिंग में तुमको जो चाहिए वो मिलने का चांस एकदम एकदम कम है, इवन सिडनी में जाओ जेबी में देखो जाओ। एक्चुअली कॉर्पोरेट में मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, इट इज़ मोर लाइक कि स्टार्टिंग में तो मतलब हर एक को मतलब मेहनत करना ही पड़ता है। वो तो अगर है। आप बॉटम ऑफ द लैडर में हो तो मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब आपको मतलब ऐसे आराम आराम से सब कुछ आपको सिल्वर प्लेट पे गोल्डन प्लेट पे मिलेगा कि यार आपको मतलब सब चीज़ें मतलब सामने से मिलेंगे। आप हम्म। उतने आपको उतना एक्सपीरियंस होता नहीं, आपको उतना नॉलेज भी होता नहीं है कि आपको उतना काम दिया जाए। इफ यू हैव दैट मच एक्सपीरियंस, आई थिंक देन यू कैन गो अहेड वेरी फास्ट एंड यू कैन गेट टू दैट लेवल। सो स्टार्टिंग में तो मतलब आपको लर्न करना पड़ता है, जो आप जो भी फील्ड में रहोगे। हाँ, मतलब जिसको प्रोफाइल अपने हिसाब से नहीं मिला, दैट इज़ अ बिट अनफॉर्चुनेट। आई रियली sympathize with those people. I am working as a credit manager, so I have got something which is quite suited as per what my qualification is and what I have knowledge. So I am, I think, much better off. So that is actually कभी कभी वो होता है कि मतलब आप एक बड़े बैंक या बड़े कंपनी में काम करोगे तो आपको फिर प्रोफाइल नहीं मिलती अपने हिसाब से। बट हम्म। देखो, लाइफ इज ऑलवेज हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी, लाइफ इज ऑलवेज हैविंग दैट यू कैन डू व्हाट यू वांट। तो यू कैन चेंज योर फील्ड व्हेनेवर यू वांट, इफ यू हैव समथिंग इन हैंड और व्हाटएवर। मतलब आपकी लाइफ होती है, आपको जो करना है कर सकते हो आप। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। यस। बट हाँ, मतलब पीपल कॉर्पोरेट में आके थोड़ा सा मतलब पीपल आर अफ्रेड कि मतलब ऐसे कुछ रैश डिसीजन ना ले कि जॉब ना छोड़ दे एंड फिर कुछ और ना हो हाथ में। तो थोड़ा सा मतलब रिस्क एपेटाइट लोगों की कम हो जाती है कॉर्पोरेट के अंदर। दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड पर्सनली आई नो दैट। सो आई थिंक इट इज मोर अबाउट व्हाट यू लाइक। एक्चुअली एक बार ये भी होता है कि आपको नहीं चाहता है कि आप किसके लिए बने हो, कि आप किसके लिए बने हो आप। हाँ। तो आपको ग्रेजुअली आ जाता है, क्या पता आपको पहले कुछ ना करना हो, बाद में आपको लगे कि यार वो मेरे लिए अच्छा था। मैंने से लोग देखे हुए हैं मेरे बैंक के अंदर ही। या सो मेरा भी मे एक बी दोस्त है। एक्सपीरियंस एंड टाइम्स हैज ऑल दैट आंसर्स। या गिरीश? मेरा एक दोस्त है, उसने भी कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया। तो उसका स्टार्टिंग में, एक्चुअली में जो कॉलेज से इंजीनियरिंग किया उधर कुछ प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो उसको बाहर से ही मिला था। कुछ 2.4 का पैकेज मिला था उसको स्टार्टिंग में।
लेकिन उसने उसमें अच्छा। किया 1-2 साल किया, फिर कंपनी शिफ्ट किया 2-3 बार, और उसको जो फील्ड चाहिए था वो स्टार्टिंग में नहीं मिला था उसको। लेकिन उसने क्या बोलते हो हम्म, एक्सटर्नल लर्निंग किया, फिर खुद का एक ऐप बनाया, ऐसा बाहर से एक्स्ट्रा मेहनत कर करके लर्निंग कर करके अपना फील्ड कैसे तो शिफ्ट किया। अभी जो फील्ड में उसको पसंद है वो फील्ड में उसने फिर लाइक उसका पसंदीदा फील्ड है तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जब अभी हम्म, लेटेस्ट उसने जो जॉब शिफ्ट किया उसके बाद उसका सैलरी हाइक डायरेक्ट 90% हो गया। अच्छा। गुड मतलब फॉर हिम। 90%, बहुत। 90% सैलरी हाइक हो गया या क्योंकि उसका ऑलमोस्ट पसंदीदा डबल फील्ड। हो गया। तो उसका वर्क जो था काम इतना अच्छा था कि उसको इतना मिल गया, लेकिन मिल सकता है। वो ग्रेजुअली, हाँ, एक बार आप 6 7 महीने 8 महीने कर लोगे तो एक बार आप वो फेज से निकल जाओगे तो फिर ग्रेजुअली थिंग्स आर मोर कंफर्टेबल। ऐसा वो फिर आपको वो स्टॉर्मी मतलब तूफानी से मतलब माहौल नहीं होता। थोड़ा समुद्र थोड़ा सा मतलब ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा समुद्र, तो थोड़ा अपनी वो बोट को मतलब वहाँ से लेके जाना हम्म। डिफिकल्ट नहीं होता उतना। थोड़ा मतलब ईजी हो जाता है चीज़ें, एक बार आप समझते हो सिस्टम में रहते हो तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल ठीक है, अभी एज इट इज़। अपना कॉलेज लाइफ से डायरेक्ट अपन इसमें गए। अभी हम लोग में अगला टॉपिक पे जाते हैं। अपना अगला टॉपिक है, किधर गया, कॉलेज लाइफ हो गया, प्लेसमेंट सिनेरियो। सिडनम का प्लेसमेंट सिनेरियो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है। जिन लोग ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। तो अभी हम थोड़ा ही बोलेंगे। गुलजार, तेरा सिर्फ व्यू बता, प्लेसमेंट कैसा है, अच्छा है बुरा है, ज्यादा डिटेल में जाना चाहता है तो जा सकता है। तेरे को जितना ओके। याद है कैसा लग रहा है सिडनम का प्लेसमेंट वो बता। Yeah, so वो सिडनी प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में आई विल जस्ट स्टार्ट बाय सेइंग दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड for the placements which started around August end 2019. So I was a person who did not have much like I do not have, मुझे ऐसे कुछ लाइफ में कभी इतना कुछ uh, ऐसे कुछ मेरा रिगरस मतलब ऐसे कुछ जिम्मेदारी नहीं आई थी हाथ में। तो हम्म। इसकी वजह से मतलब मैं इतना मतलब आई वाज नॉट टेकिंग थिंग्स वेरी सीरियसली व्हिच आई शुड हैव टेकन लॉन्ग बैक। सेम, सबके साथ वही बिकॉज होता है। सिडनी इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव कॉलेज। सिडनी में कैसा है कि कंपटीशन होता है एंड अगर आप कंपटीशन में नहीं रहोगे तो आपको फिर धकेल के मतलब लोग फिर आपकी जगह ले लेंगे एंड आपको या मतलब फिर कुछ मतलब आप स्टैंड का कहीं कर नहीं पाओगे आप। सो प्लेसमेंट सिनेरियो में तो मैं ये बोलूँगा कि सिडनी में जो कंपनीज सबसे अच्छी होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। सो एंड द क्रीम ऑफ द क्राउड एक्चुअली गेट्स इनटू दोस कंपनीज, दोज हु हैव द नॉलेज, दोज हु हैव द कैलिबर, दोज हु आर एक्चुअली बिल्ट फॉर दोस रोल्स। सो आई रिमेंबर वन कंपनी हैड कम, उसका काफ़ी अच्छा एक रोल था। बाकलेस। तो एक हमारे, नहीं, सिटी कॉर्प। सो सिटी को, सिटी अच्छा। कॉर्प में एक हमारे काफ़ी, सिटी कॉर्प में आदित्य नागर हमारे फ्रेंड थे, तो ही हैड गॉट इनटू आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। So we were अच्छा। all very happy for him because he deserved that role. So I think gradually it does come down to that. If you deserve something, you will get it. So we obviously felt bad for ourselves that we were not selected for that role. But yeah, as a friend, I will definitely. I was not a very good friend of his, but yeah, he was a classmate. So I really feel that he did get something which was very much built for him. I'm not sure where he is right now, but yeah, I had appeared for a few interviews before I being selected into ICICI Bank. बट दोज इंटरव्यूज फॉर मोर लाइक कि सबका हो रहा है प्लेसमेंट तो यार हम भी ट्राई करते हैं, क्या पता हमारा भी कुछ हो जाए। वो मेरे कप ऑफ टी नहीं थे एज इन, मतलब वो सारे इंटरव्यूज जो मैंने दिए थे थोड़े से मतलब अलग टाइप के थे, डेरिवेटिव्स एंड मोर इनटू लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस। ये आई फाइनेंस में वाज नॉट मच। टेक्निकल ज्यादा होता है इंटरव्यू में, हाँ, तो राइट? मैं जो हमारे एक बैच के जो काफ़ी लोग थे जो मतलब अच्छे खासे क्वालिफाइड थे, मतलब उनको नॉलेज था। सो दो दे गॉट इनटू दोस रोल्स एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड। मैं एक आधा राउंड में हुआ था आगे, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो इट वाज मोर लाइक मैंने हर इंटरव्यू से कुछ सीखा था। मतलब कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू तो आई वाज, मैं डेंगू से मैंने रिकवर हुआ था उस टाइम पे। सो तेरे को आई वाज डेंगू जस्ट, होता मैं है? बस गया था उस टाइम एंड या अगस्त सितंबर में हुआ था वो, तो बस मैं उठ के आया था एंड इंटरव्यू कैसे भी करके बिकॉज शॉर्टलिस्ट हुआ था मैं। तो उस टाइम पे मैं इंटरव्यू देने गया था एंड बस मैं कैसे भी करके मैं आई वाज स्वेटिंग एंड बहुत बुरा हाल था। आई वाज, मैं सहमा कर रहा था अपने अंदर। बट इंटरव्यूअर्स काफ़ी अच्छे थे, थोड़ा उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कराया था। बट हाँ, मतलब मेरा नहीं हुआ था बट आई मुझे गिल्ट नहीं हुआ था बिकॉज लर्निंग एक्सपीरियंस था वो, कि मतलब एक फर्स्ट इंटरव्यू लाइफ का हुआ था जो प्रॉपर इंटरव्यू था, मतलब एक मॉक इंटरव्यू नहीं था वो। हम्म। मैंने अपने इंटर्नशिप मैंने अपने एक पापा के मतलब एक कम्युनिकेशन से ली थी। सो हम्म। उसका तो मतलब एक मुझे इतना मतलब कुछ फॉर्मल नहीं था मेरे लिए, बट वहाँ पे काम था। बट फिर भी मतलब एक अपने खुद के मतलब मेहनत से इंटरव्यू पे जाना है वहाँ पे फिर नहीं परफॉर्म करना, तो उसे थोड़ा गिल्ट हुआ था। बट सीखने में काफ़ी मिला था उससे।
तो ये ऐसे है एंड देन आई डिड अपीयर फॉर अ फ्यू इंटरव्यूज एंड लेटर ऑन एसएसएफ बैंक केम टू आवर कॉलेज एंड आई रिमेंबर कि मैं सुबह सुबह 6 बजे पहुंचा था इंटरव्यू के लिए कैंपस में एंड उन्होंने मतलब 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे एंड आई वाज सिलेक्टेड एंड आई वाज टोल्ड कि मुझे सेल्स का प्रोफाइल मिलेगा एंड आई हैड सेड हाँ मैं सेल्स का काम कर लूंगा but later on I did not get sales and I am actually happy and glad कि I was not in I did not be selected for the sales profile because bank फाइनेंस sales are वालों को भी something which सेल्स is ऑफर किया? हाँ बैंक के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से मतलब इट इज़ अ बिट सीनियस मतलब कि आपको मतलब उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है एंड प्रेशर होता है सो आई एम हैप्पी कि मतलब मैं एक तरीके से मतलब मैं शायद प्रेशर ले नहीं पाता वो शायद अभी मैं कहीं और होता आई वुड नॉट हैव बीन इन ऐसे बैंक राइट नाउ सो बस ये है कि मतलब फिर बस इंटरव्यू हो गया बाद में फिर सेम 3 हमारा हो चुका था उस टाइम पे फिर सेम 4 कॉलेज गए थे ही नहीं लेक्चर्स हम लोग को मतलब बहुत कम थे सेम 4 में तो कॉलेज बस लेक्चर थे तो जाते थे हम लोग हम्म। एंड देन सेम 4 का एंडिंग हो गया फिर हमारा कोविड आ गया था उस टाइम पे एंड एवरीथिंग बस स्टॉप फॉर अस एंड बस ये था कि एग्जाम हो गए थे बाद में कोविड आया तो मतलब ये था कि एग्जाम तो हम दे चुके थे अपने हम्म। या गिरीश तो ठीक है, फाइनली हो गया आईसीआईसीआई में। लेकिन ऐसा हुआ क्या, मतलब हाँ जो लोग फाइनेंस में है उन लोग को भी मार्केटिंग का रोल दिया? हम्म, ऐसा हुआ क्या अपने कॉलेज में? होता है कि उस टाइम पे पीपल आर मोर कि यार एक जॉब मिल जाए एक प्लेसमेंट मिल जाए एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाए मतलब सब लोग को मिलता होता है कि मतलब 12 13 14 15 तो लगता है कि यार हमें भी मतलब कुछ तो मिले लाइक हम भी कहीं स्टैंड करें एक होता है कि यार मतलब हम्म। एक मतलब बंदे की एक रेवोल्यूशन होती है वो दिख जाती है फिर लगता है कि यार हमें क्यों नहीं मिले उतना हम तो उनसे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं हम्म। क्या पता कोई ड्रीम कंपनी आ जाएगी और वो अच्छा खासा देगी पैसा और मतलब हम वहाँ हो जाएंगे तो सबको दिखेगा कि यार हमारा मतलब ऐसे हो गया कि यार किसी का नहीं हुआ उधर और मेरे अकेले को का हमारा रोज हो गया रात को ऐसा जैक लग गया सपना आता था, मालूम है क्या? ऐसा ड्रीम में आता था कि एक आध कंपनी आ जाएगी और लकीली मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, 15 लाख का पैकेज मिलेगा। रोज मैं यही सपना देखता था। सो हाँ मतलब ऐसे था कि यार लॉटरी मिल हाँ, जाएगी तो लॉटरी वही लग मैं पूछ जाएगी रहा अपनी हूँ एंड कि मतलब जो लोग ने फाइनेंस किया है उनको जो अपना कॉलेज से प्लेसमेंट मिला है, तो उन लोग में से मार्केटिंग का रोल मिला है क्या, सेल्स का? फाइनेंस वालों को किसी को अपने में से? हाँ मतलब मुझे आई विल नॉट टेक नेम्स बट हाँ आई नो सेवरल पीपल हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोफाइल्स राइट नाउ आफ्टर डूइंग एमबीए इन फाइनेंस लेने फाइनेंस के फ्रॉम बाद? सिडनी हाँ तो देखो एक्चुअली मैंने बताया कि मतलब पीपल वर मोर कि यार एक जॉब मिल जाए एक मतलब जॉब एक मिलना स्टार्टिंग मिलने इम्पोर्टेंट था। स्टार्ट मिल जाए हाँ भाई। फिर मतलब मतलब ऐसे लोगों ने जॉब ले ली बाद में हम्म। लोगों को ऐसे मतलब शायद समझा कि यार मतलब सही चीज़ नहीं मिला वही बट सेकेंड हाफ के ठीक बाद है वही मतलब सीन होता है कि अपॉर्चुनिटीज ऐसे हाथ से निकल रही है, ऐसे दिख रहा है, और ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में बहुत सारे प्लेस हो जाते हैं ना 50% से ऊपर। तो अपने को लगता है हम्म, प्लेस होंगे नहीं होंगे, उससे अच्छा जो मिल रहा है ले लो, ऐसा सोचते हैं पब्लिक। हाँ तो ऐसा घर से भी प्रेशर आता ही है मतलब हाँ, घर आफ्टर से। ऑल तो हम सब वो तो मतलब है। ह्यूमन बींग्स ही है सिबलिंग के है तो फिर भी हम इंसान ही है हम लोग को भी घर वाले ऐसे होते हैं कि यार इतना तुमको मतलब एक नर्चर किए इतना तुमको आगे लेके गए तो तुम भी मतलब ऐसे कुछ मतलब वही, रिटर्न दो हम लोग जॉब को तो चाहिए रहता है सबको। हाँ मतलब तुम भी मतलब अपना मतलब कैलिबर दिखाओ तुम्हारे फ्रेंड्स का हो रहा है तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा तो आता है प्रेशर वो उस टाइम पे वो तो है। तो मतलब ऐसे हमारे साथ में फ्रेंड्स अच्छे थे उनका प्लेसमेंट हो गया था तो इट वॉज मोर लाइक कि यार हमारा भी हो जाएगा कहीं ना कहीं भगवान से दुआ करते थे अपना तो फाइनली जब भी हुआ प्लेसमेंट तो थोड़ा खुशी होता था एंड जो मतलब एक्सपेक्टेशन था वो कुछ और था वो था कि शायद मैं सेल्स में रहूंगा आरएम बन जाऊंगा रिलेशनशिप मैनेजर बन जाऊंगा मैं हम्म। कुछ मतलब सेल्स का टारगेट्स होंगे बट अभी तो अलग काम कर रहा हूँ मैं बट ये है कि मतलब आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ एंड आई एम ग्रोइंग डेली सो सेल्स का काम काफ़ी लोग को मिला भी था मार्केटिंग का काम भी मिला था एंड कुछ आईटी कंपनीज भी हमारे यहाँ पे आए थे आईटी कंपनीज में ये था कि मतलब देवर मोर टुवर्ड्स की आईटी कंसल्टिंग उसमें हाँ, कंसल्टिंग क्या आते हैं सब अपने को, बहुत सारे रोल आते हैं तो कंसल्टिंग उसमें के। तो आईटी आईटी के रूल्स थे बट फाइनेंशियल ओपी उन्होंने लिए थे तो इट वाज मोर लाइक कि मतलब एक अच्छी आपको कंपनी मिल जाएगी स्टार्टिंग में तो लोगों ने उस एंगल से उसको देख के वहाँ पे प्लेसमेंट लिया था आई थिंक बट हम्म। हाँ मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब जिसका भी जो भी हुआ अभी नहीं, जहाँ भी लोग हैं वो उन एवरीवन लोगों इज ने वेल क्या ऑफ सोचा कि अभी जॉब ले लेंगे और फिर बाद में शिफ्ट करेंगे, कंपनी का नाम वगैरह देके, ऐसा करके लिया बहुत लोगों ने। हाँ बट हाँ वो कोविड सिचुएशन भी आ गया था थोड़ा सा डिफिकल्ट हम्म। हुआ के लिए थोड़ा सा प्रेशर आ गया था बट ठीक है अभी मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड अभी मेरे ख्याल से नो वन इज स्टॉपिंग एनीवन फ्रॉम शिफ्टिंग और लुकिंग फॉर समथिंग एल्स मेरे बट को याद या है सिबलिंग अभी। डिड गिव मी अ गुड हाँ। या गिरीश कौन तो था यार, मेरे को उसका नाम याद नहीं है। उसने बोला था कि वो अंदर इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू क्रैक भी किया, लेकिन उसने जब प्रोफाइल के बारे में पूछा तो हम्म, पता चला कि सेल्स वाला प्रोफाइल है और वो फाइनेंस का था कोई तो उसने मना किया था कंपनी को कि मेरे को फाइनेंस का ही प्रोफाइल चाहिए हाँ था।
देखो एक्चुअली जितना मैंने अभी बैंक में एक्सपीरियंस किया है तो मतलब फाइनेंस तो मतलब सब जगह कहीं ना कहीं तो आता ही है मतलब बंदे को, तो कहीं ना हम्म। कहीं तो चीज़ें होती है, बट हाँ मतलब जो आपको काम करना होता है वो तो आपको नहीं मिले तो फिर ऑब्वियसली अ पर्सन हैज दैट गिल्ट कि यार मतलब आई वो हैड तो समथिंग है। एल्स इन माइंड एंड आई गॉट समथिंग एल्स। अभी सिडनी में जैसे कॉलेज में पढ़ाई करके आपको मतलब अगर आपको प्रोफाइल नहीं मिले जो मतलब अपने हिसाब से, तो ऑब्वियसली पीपल विल फील कि यार हम लोग मतलब इतना एफर्ट करके सिडनी में आए एंड फिर जाके ऐसे काम मिला जो शायद मतलब हमारे टेस्ट का नहीं है, लैकिंग का नहीं है। बट हम्म। आई थिंक लक भी मैटर करता है, लक ऑल्सो लक ऑल्सो प्लेज अ बहुत मैटर चांस। करता है। बिकॉज मैंने सीएस को भी देखा हुआ है जो सेल्स से भी काम करते हैं, तो ऑब्वियसली सीए करके तो कोई बंदा सोचा नहीं होगा शायद कि सेल्स में काम करना है, बट पीपल डू वर्क। इट इज मोर लाइक इंडिया में तो कॉम्पिटिशन होता ही होता है, तो पीपल आर मोर लाइक यार जॉब मिल जाए, अच्छी खासी जॉब मिल जाए, अच्छा खासा पैकेज बस। मिल जाए हम्म। अराउंड आई थिंक 8 9 10 लाख, मतलब इतना तो हम समझते हैं कि इतना मिलेगा सिडनी से हमें, उतना तो मतलब ये इतना तो मिल जाए एंड उतना हम होती है एक्सपेक्टेशन। तो इट इज मोर लाइक ठीक है, मतलब वीरेश ने सही बात की कि मतलब पीपल आर मोर की अभी सबका हो रहा है तो हमारा भी हो जाए एक जगह पे एंड वही। मतलब एक टेंशन निकल जाए लाइफ माइंड से एंड लाइफ से कि यार मतलब प्लेसमेंट नहीं हो रहा। दैट इज मोर आई थिंक व्हाट ड्राइव्स यू इन द लेटर हाफ ऑफ द प्लेसमेंट सीरीज है। ठीक है, तो प्लेसमेंट का क्या गिरीश? अभी एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग Q&A करेंगे, जो मुझे क्वेश्चंस आए हैं सब्सक्राइबर्स के। तो लास्ट अपना टॉपिक ओके। ये है कि अभी का जो मार्केट कंडीशन है वो कैसा है। जो न्यू कमर्स है उनके लिए अभी अगर मार्केट में जॉब चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट बोले या फिर कुछ भी, तो कौन सा फील्ड अच्छा है, या फिर मार्केट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है। अभी तेरे को ज्यादा मालूम है, मैं तो मतलब मुझे पता है थोड़ा बहुत, इंटरव्यू वगैरह देके, बट तू ऑलरेडी काम कर रहा है बैंक में तो तेरे को पता रहेगा। देखो आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ वेरी लार्ज बैंक, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। आई एम वेरी मच glad I'm proud to work in this इंस्टीट्यूशन। सो हमारे यहाँ पे तो मतलब मेजरली द रोल्स विच आर ऑफर ऑफ सेल्स। तो सेल्स में कैसा होता है कि पीपल कम पीपल लीव, आई हैव सीन पीपल लीविंग इन अ कपल ऑफ मंथ्स, इन अ फ्यू मंथ्स। तो इट इज़ मोर एज इन कि सेल्स में आपको मतलब अगर आप आ भी गए तो आपको सेल्स में जॉब तो मिल जाती है, बट आप कैसे मतलब उसको कर लेते हो, मतलब आप उसे कैसे मतलब अपने अपने जो भी उसमें स्ट्रेस होता है या तो जो भी उसमें कॉम्पिटिटिवनेस होती है, जो भी आपको मतलब टारगेट्स होते हैं, आप कैसे अचीव करते हो। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। हम्म। सो इट इज़ मोर लाइक जैसे मैंने सेल्स में मतलब मैंने देखे हुए मेरे कलीग जो है, तो इट इज़ some people can achieve and outperform also, some people are not able to do it. So I think it is more about your own caliber. या। Speaking about core finance rules, तो हाँ मतलब core finance की भी ओपनिंग्स होती है। सो आई थिंक इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स तो नहीं होंगे एज कम्पेयर टू प्री कोविड टाइम्स एंड जो मतलब उस टाइम पे अलग ही एक मतलब सिनेरियो था, बट हाँ मतलब ओपनिंग सब जगह होती है एंड इट इज़ मोर लाइक कि मतलब आई थिंक द मेन थिंग इज आपको इंटरव्यू तक पहुंचाओ आप अपने आप को। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो मेरे ख्याल से उसके बाद में आप क्रैक कर लोगे, अगर आपको उतना मतलब कैलिबर है and how you convince interviewer, how you speak, how you have that, and how you show yourself, how you show that I have that qualification and I have that which हालांकि आपको इंटरव्यू में तो पूरी चीज़ें नहीं आपको मतलब दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, बट whatever the basic of that role which you are being offered, that you should be knowing. That is what I believe. I yet believe that people are there outside कि यार बहुत लोग बैठे हैं उनको जॉब नहीं है। I really feel sad for them कि मतलब ऐसे पीपल डेली ऑन इंटरनेट आई सी पीपल बेगिंग फॉर जॉब्स एंड सेइंग कि यार घर पे बीमार कोई हो गया है तो पेरेंट्स को मैं ही संभाल रहा हूँ या तो फैमिली मैं संभाल रहा हूँ एंड जॉब नहीं है, थोड़ा सा मतलब हार्ड टाइम चल रहा है। बट आई रियली थिंक कि पीपल बस मतलब फाइट करते रहो। इंडिया में पॉपुलेशन का इशू है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब जॉब्स आर नॉट एडिक्वेट इनफ फॉर एवरीवन। बट आई बिलीव कि मतलब इफ अ पर्सन इज क्वालिफाइड इनफ देन ही विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स एंड ही विल गेट हिज ड्रीम्स विल कम ट्रू। एंड जिसे जो पढ़ रहे हैं अभी वो अच्छे से मतलब पढ़े, स्किल्स अपने डेवलप करे, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करे, अच्छे से मतलब टेक्निकल हाँ, स्किल्स डेवलप मेन करे तो एंड सॉफ्ट देखिए कि स्किल है। मतलब मतलब मेरे हिसाब से फील्ड में तो क्या अभी रिक्वायरमेंट है, अपना भी अब आपको जो प्लेसमेंट काम के करना टाइम है। पे, हाँ क्या गिरीश? अपने भी जो प्लेसमेंट के टाइम पे सॉफ्ट स्किल्स जिनके पास बहुत अच्छे थे वो लोग फटाफट प्लेस हो गए थे, मतलब सो आई इंटरव्यू। बिलीव कि अभी जो मतलब इंडस्ट्री में अभी पता है बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं, बिकॉज ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रहा है, देन हम्म। डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो मतलब पीपल शुड बी हैविंग नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स। थोड़ा बहुत जावा पाइथन मतलब ये वो लैंग्वेजेस आजकल हर चीज़ में आ रही है, तो दे आर मोस्ट रिक्वायर्ड आई थिंक एज कम्पेयर टू व्हाट सिनेरियो इज राइट नाउ। या। तो पीपल शुड बी नोइंग सम थिंग्स अबाउट कोडिंग,
some things about like how automation is and मतलब आईटी के मतलब भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा जो काम करता है उसमें भी हम लोग को सॉफ्टवेयर पे काम होता है एंड वी हैव सिस्टम्स एंड वी हैव डेवलप्ड इकोसिस्टम। तो इट इज मोर लाइक कि आपको मतलब एक मैंने आईटी में इंजीनियरिंग की हुई है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है उसके अंदर। बट इट इज मोर लाइक कि आप थोड़ा सा मतलब आईटी में सीखो, आईटी के आप भाग सकते नहीं हो एंड अपना भी आपको मतलब जो भी आपको स्किल सेट डेवलप आईटी करना अब है हर तो मतलब चीज में आ गया डेवलप है, योरसेल्फ। राइट। अभी तो 5G मेरे ख्याल से आ जाएगा इन सम टाइम। So I think I believe and a person should develop himself as per what he requires and what his aspiration is. Abhi as a career manager, I will develop my skills that I can grow for further. I can go ahead. या So whatever you want to develop yourself and whatever you feel is best for you, develop yourself. As in like how you can go ahead. You can be selected in for a company. I think firstly and later on, जो काम होता है वो सीखो, उसको अंडरस्टैंड करो एंड इंडस्ट्री देखो कि मतलब क्या और होता है, कैसा होता है। हाँ, तो जो लोग या अभी जो लोग रहते हैं, देख अभी कॉलेज शुरू होने के बाद अपने को पता चलता है कि अभी मार्केट में सिचुएशन ऐसा है वैसा है, तो उन लोग के लिए सेकंड ईयर एक अच्छा चांस रहता है। सेकंड ईयर में लेक्चर्स कम होते हैं तो वो टाइम पे वो लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कोर्सेज। अभी कुछ लोग सीएफए करते, तूने भी सीएफए किया था, राइट। तो कुछ लोग सीएफए करते हैं, कुछ लोग इंटर्नशिप करते हैं। अपना मंगेश ने कितना 2-3 वो कंटिन्यू इंटर्नशिप कर ही रहा था, मालूम है ना। वो तो बाहर से अच्छा 16 का पैकेज उठाने वाला था, बस उसका लक खराब था। बट उसको मिला, डिसेंट पैकेज मिला कॉलेज से। उसको जो प्रोफाइल चाहिए था शायद वही मिला। तो वही चीज है, सेकेंड ईयर रहता है जिनको जिनके पास ये स्किल्स नहीं है तो वो लोग सेकेंड ईयर में उस पर फोकस कर सकते हो एमबीए के टाइम, और एक अच्छा जॉब अपने लिए मिला सकते हो। ठीक है, अभी अपन लोग, so हाँ yeah, बोल। yeah, Girish, you can go ahead. अपन क्यूएनए पे जाते हैं अभी। सो हम लोग विल स्टार्ट विद दी कमेंट्स जो मेरे पिछले वीडियो पे सीईटी के आए थे। इसमें जो क्वेश्चन है वो पहले डिस्कस करते हैं। Okay. तो पहला क्वेश्चन है Yeah, sure, सुनील sure. सुनील मिस्त्री। तो मे बी माई सीईटी स्कोर Yeah. विल बी रिड्यूस्ड। अभी का सीईटी के हिसाब से पूछ रहे हैं, अभी ये साल जिन लोग ने सीईटी दी उन लोग का ये क्वेश्चन है। इफ आई डोंट गेट कॉलेज आई Hmm. वांट, सो इट्स इज इट Hmm. it's good to see other colleges, or should I take a gap for March CET? But I don't want to take gap. Literally, I don't understand what to do. Suggest something. Um, देखो थोड़ा सा मतलब ये डिलेमा वाला क्वेश्चन होता है बिकॉज इट इज मोर आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस। Yeah. अगर कैसा होता है कि मतलब देखो अभी कॉलेज आपको पता है कि कॉलेजेस के एक टायर होती है। सो कॉलेजेस विच आर हायर रैंक आर हैविंग हायर टायर एज पर द प्लेसमेंट इटसेल्फ। प्लेसमेंट पे ही Yes. एमबीए चलते हैं इंडिया में, प्लेसमेंट पे ही कॉलेज का नाम होता है। तो अगर आपको देखो सिडडीम का मतलब मेन फायदा हमें क्या हुआ कि वी गॉट अ वेरी नाइस स्टार्ट। मतलब हमें स्टार्ट में ही मतलब एक अच्छा पैकेज मिल करियर गया का था किक तो स्टार्ट अच्छा हुआ। या करियर का एक स्टार्ट अच्छा हो गया हम लोग को मिल गया था। तो दैट वे इफ आई से इफ यू कैन वेट सी इफ यू आर कंफ्यूज आई विल सजेस्ट कि मे बी आई थिंक यू शुड वेट टिल मार्च बिकॉज आई थिंक मार्च इज नॉट वेरी मच फार अवे। सितंबर तो अभी हो चुका है, हाँ, 6 महीने की बात है। 6 महीने की बात है। देखो लाइफ के लिए मतलब अपना 6 महीने के बाद से देखो 6 महीने के बाद के दो होते हैं मेन। शॉर्ट टर्म में आपको 6 महीने घर पे बैठना पड़ेगा, शायद आप कुछ कर नहीं रहोगे अभी, तो मे बी आपको घर वाले थोड़ा मतलब स्कूल हम्म, करेंगे कि यार ताने मतलब घर बैठे मारेंगे। हो कुछ कर नहीं पा रहे हो। मतलब ऐसे क्यों मतलब अपना मतलब टाइम खराब कर रहे हो, हम्म। आपका टाइम क्यों खराब हुआ। सेकेंडली ये होता है कि अगर आप 6 महीने अच्छे लाइक इफ यू सी इट इन द पॉजिटिव वे देन मे बी नेक्स्ट ईयर क्या बता सीटी टॉप ही कर जाओगे, आपको जेएमएस मिल जाएगा एंड आपको फिर वहाँ पे से आपके मतलब जो नेवी में जाना एंड आपकी वो ड्रीम पूरी हो जाएगी। सेकेंडली आपको एक बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा सिडनी से भी हमसे काफ़ी अच्छा, मतलब आपको ऑलमोस्ट 50-60% आपको हाई। So you can take it in both ways. But I will suggest कि if your age is like around 23, 24, 22, then I think you should wait for six वेट। months. हम्म। And if your age is on the higher side, then I think you should you can हाँ। suggest or you can actually take admission this year itself. But देखो कैसा होता है कि आपको अगर पैकेज कम मिलता है तो आपको फिर उसको हाई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा फिर। तो आपको मतलब अगर आपको इफ मनी डज मैटर बिकॉज या। so I have seen people like they are slogging it out and then they don't get hikes and they don't get that increment. So money does matter in the end. It does यस। matter like whatever you do or after all the money आप जो आपको सैलरी मिलती है वो मैटर करती है मंथ एंड में बिकॉज देन
माई सैलरी इज गुड इनफ फॉर माई ओन जो मेरे खर्चे होते हैं। तो ये होता है कि कुछ लोग के खर्चे ज़्यादा होते हैं, फिर लोन लेके करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो वो अलग बात होगी। बट मेन बात ये है कि सिडनी के आपको मतलब ये सिडनी में जेबी का फ़ायदा मिलेगा, सोमाया का अभी आई थिंक अभी सिटी में नहीं है। सो मैं नहीं है सीईटी में। तो ये आपके ऊपर छोड़ देंगे कि थोड़ा सा मतलब मेरा आंसर डिप्लोमेटिक रहेगा कि आपको छोड़ेंगे। बट सोशल हाँ लेवल पे कैसा है ये, एंड आपको एज अगर आपके साइड में है तो एक आप 6 महीने रुक जाओ। हाँ, एज अगर अगर आपको कम लग है रहा है तो कि ठीक आपको है, छह पेरेंट्स का महीने थोड़ा रुक सा सकते हो। प्रेशर है, पेरेंट्स का नहीं, इन प्रेशर है, केस एंड आपको अगर मतलब अगर प्रेशर एमबीए शुरू है, करना ही है। प्रेशर है तो भी अगर अभी टाइम है तो अगर मतलब आपको गारंटी है कि आपका स्कोर हम्म, कम है तो अभी इंटर्नशिप ज्वाइन करो, 2 महीने इंटर्नशिप करो, फिर बाकी के बचे 3 साढ़े 3 महीना सीईटी का प्रिपेयर करो। तो एक एडिशन भी हाँ हो जाएगा एज रिज्यूमे इन में। हाँ मतलब कुछ तो करते रहोगे आप, मतलब मैं तो इंटर्नशिप ही नहीं करोगे तो कुछ कोर्स कर लो, आपको जिस छह फील्ड में महीना एमबीए बहुत करना है, टाइम अगर रहता आपको है। मतलब नॉलेज है उसके बारे में। हम्म। काफ़ी कुछ आप कर सकते हो, उसके लिए पढ़ सकते हो अपना, मतलब दोबारा अपना शुरू कर लो। मे बी अभी तो नहीं पढ़ना, थोड़ा टाइम बाद पढ़ना, अगर आपको मतलब थोड़ा मूड डाउन है आपका, थोड़ा सा खुद को मतलब एनर्जाइज करके थोड़ा सा आप खुद को फिर से मतलब वो लेके आओ। हम्म। बट आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड बिफोर 6 मंथ्स। कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन का पता होता नहीं है, सीईटी के दिन पे क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, पेपर कुछ और ही आ जाए। इस टाइम पेपर अलग ही आया था एज कम्पेयर टू वॉट पीपल वर बहुत अलग एक्सपेक्टिंग। आया था। बट आई या थोड़ा सा वो अलग भी मैटर करता है मेरे ख्याल से। चलो, बट हाँ अभी 20 साल के करके जाओगे एक्सपीरियंस तो के आपको हिसाब से लाइक अगले टाइम के लिए लाइक तुम रेडी तो रहोगे कि भाई कुछ भी हो जाए, मैथ्स आ जाए, लॉजिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, ज्यादा ज्यादा प्रिपरेशन हम्म, अच्छा होगा। सो लाइक अगर एज कम है तो या आई सजेस्ट एज गुलजार सजेस्टेड, वेट करो, चाहे तो इंटर्नशिप कर लो एक आध 1-2 महीना, एंड फिर 4 महीना अच्छे से प्रिपेयर करके दे दो, तो क्या पता जेबी मिल जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, सिडनम मिल जाएगा तो भी हो सकती है। एंड या अगर आप ये देखिए वीडियो तो अपना मतलब पूरा बताना कि आपका बैकग्राउंड वगैरह कमेंट्स में। तो थोड़ा हम लोग आपको ये हाँ सिखाना कि मतलब आपका अभी फिलहाल क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो अगर हो सके तो देन वी विल एबल टू गाइड यू बेटर। या तो आई रियली वी विल डेफिनेटली कमेंट्स पे रिप्लाई करेंगे हम लोग। सो वी विल डेफिनेटली लुक आउट फॉर योर रिप्लाई एंड वी विल इसके गाइड बारे यू में अपन एज अभी पर व्हाट। थोड़ा अनाउंसमेंट है, अभी क्वेश्चंस खत्म होने के बाद करेंगे। श्योर। शिवम शर्मा इज, हाय शिवम। ये एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो ब्रो ऐसे हो रहा है, ओके। लाइक मेरे बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो अच्छा अच्छा उसका बताइए क्वेश्चन का कमेंट गिरीश। है, ब्रो ऐसे हो रहा है तो कांट ट्रस्ट सीईटी का एग्जाम, दूसरा ऑप्शन रखना ही पड़ेगा, रीजन क्या हो सकता है ये पैटर्न चेंज का। हाँ देखो आईबीपीएस मेरे ख्याल से अभी भी सीटेट का सेट कर रहा हो तो आप आईबीपीएस के पहले इस साल के पेपर या तो नेक्स्ट साल के पेपर को आप ऑब्जर्व करो। मोटा मोटा सीईटी का एग्जाम का पैटर्न वैसे ही आता है जैसे आईबीपीएस सेट करता है अपने पेपर को। तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको अगर पैटर्न का लग रहा है तो थोड़ा उनके हिसाब से आप मतलब जाओगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि मतलब आईबीपीएस ही क्वेश्चन सेट इस करता साल है ना कैसे होने सीईटी। वाले सेट। हाँ तो आई थिंक अगर उनका ड्रास्टिक कुछ चेंज होगा तो हमारा एग्जाम में भी चेंज आ सकता है, बिकॉज उन लोग को मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ डीटीए ने। आई एम नॉट श्योर वो अरेंजमेंट क्या है, बट तो आई थिंक उनके पेपर को आप अगर गो थ्रू करोगे तो आपको आ जाएगा। तो रीजन पता आई विल नहीं है से ये दैट। टाइम का क्या है, एंड बोल नहीं सकते। हाँ देखो मतलब इट इज़ अनफॉर्चुनेट अगर मतलब स्टूडेंट्स का मतलब कुछ प्रिपरेशन था, कुछ मतलब माइंड में था एंड उनका हिसाब से थोड़ा अलग हो गया। तो बिकॉज एक साल का मेहनत होता है हर एक का, एंड मैंने भी वही वो ना। फेस से आ चुका हूँ मैं कि यार टाइम टाइम मैटर्स अ लॉट, टाइम डज मैटर इन द एंड। बट मेरे हिसाब से ये है कि आप यू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, बी प्रिपेयर्ड। एंड जो आपने बताया कि कुछ और ऑप्शन रखने के लिए तो मे बी आप बाकी एग्जाम्स दे दो, मैट दे दो, जी मैट नहीं सी मैट दे दो, मैट दे दो। आठवां एग्जाम आई एम नॉट श्योर कि अभी है कि नहीं सीईटी में जो आत्मा का एटीए लेता है। नहीं। ठीक है। नहीं, अभी देख मेरा यू नो बताओ क्या एक्सपीरियंस मेरे ख्याल है। से काफ़ी एग्जाम्स होते हैं। अभी मैं जब सीईटी दिया था तो मेरे क्या पिछले गिरीश। साल में, मेरे पिछले वाले साल में 86 परसेंटाइल को, मेरे कास्ट वाले को जेबी तक मिला था एडमिशन। मतलब तू इमेजिन कर वो टाइम पे कितना लो कट ऑफ था, मतलब 2017 या 16 का था शायद वो। लेकिन अभी मेरे टाइम पे मेरे 90, मैं क्लोज में था, मतलब सिडनम का क्लोज 97.88 पे हो गया था। तो हर बार ये ड्रास्टिक चेंज भी हो सकता है और कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा बोल भी नहीं सकते। तो एवरीथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं बोल सकते, बस इतना कि हर देखो चीज के कट ऑफ लिए। तो इस साल बढ़ेगा क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो कट ऑफ तो हम्म। मतलब बढ़ता ही बढ़ना है, क्योंकि वो हर परसेंटाइल पे और फिर और लोग होते हैं तो मतलब फिर एग्जाम का वो भी पैटर्न चेंज होता कॉम्पिटिशन है, वो बढ़ता टफ रहता है। करते हैं।
तो देखो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज करने का क्यों मेरे ख्याल से जायज़ है, बिकॉज़ अगर सेम पैटर्न रहेगा तो फिर और हाईएस्ट कट ऑफ्स होंगे, तो नहीं, लोगों को लेकिन फिर समझ जाएगा, तो और हाई मतलब फिर कॉम्पिटिशन जाएगा। अब तो थोड़ा-सा मेरे ख्याल से कंपटीशन, इक्वल करने के लिए वो ऐसे करते हैं कि कट ऑफ्स को हाँ, वो एक हो सकता है थोड़ा लेकिन। एग्जाम के पैटर्न को चेंज करते हैं। हो सकता है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट गोज़ इन देयर माइंड व्हेन दे हैव दैट। मनोज या बनकर, ओके. मला हे मराठीने पूछ रहा आहे, मला लास्ट कॅप राऊंड झाल्यानंतर फोर्थ राऊंड जो ऑफलाईन असतो त्याची डिटेल्स कशी चेक करायची. लास्ट राउंड साठी जो ऑफलाइन रहता है जिससे मेरा एडमिशन हुआ था, उसके त्यासाठी ट्राई केलं पाहिजे का, वो पूछ रहे उसके लिए ट्राई करना चाहिए क्या, मुझे उसके लिए वीडियो बनानी सॉरी, मुझे पड़ेगी मराठी वो. थोड़ी कम समझ आती है। नहीं, वो अभी मैं अच्छा, बताता अच्छा। हूँ. या ये वो कैसा रहता है, हर कॉलेज का अपना सिस्टम रहता है जो ऑफलाइन कैप राउंड रहता है उसके लिए. तो सिडनम का सिस्टम ऐसा है कि वो हुँ, लोग अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डालते हैं. एक पीडीएफ रहता है, लिंक रहता है, उस लिंक में अप्लाई करना रहता है और ऑफलाइन कॉलेज में जाके वो डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स के सेट के साथ एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल के पूरा एप्लीकेशन भर के उधर जाके सब फोटो बिटो चिपका के ऑफलाइन सबमिट करना पड़ता है. और उसके बाद ऑनलाइन लिस्ट लगती है अच्छा। कि किस किसने अप्लाई किया है. और उसमें फिर कट ऑफ पता चलता है कि आपने कास्ट में से कितने लोगों ने अप्लाई किया, उधर स्कोर भी दिखता है. तो उसमें पता चलता है कि अपने को मिलेगा नहीं हुँ। मिलेगा, और मेरे को 100% मिलने वाला था. तो फिर भी जो एक दिन रहता है वो दिन वो लोग अच्छा। बुलाते हैं वो दिन कॉलेज में, और वो दिन अगर कोई उधर नहीं पहुंच पाया ना तो उसका एडमिशन गया, तो उसके नीचे वाले रैंक को मिल जाता है. तो उसके ऊपर हाँ। वीडियो मैं बनाऊंगा हाँ, शायद एक्चुअली बाद में. इंजीनियरिंग में मैंने एक्सपीरियंस किया था। अच्छा, अच्छा। इंजीनियरिंग में लास्ट राउंड में लिया था. हाँ, इंजीनियरिंग में मैं थर्मल शानी कॉलेज में गया था एडमिशन के लिए, बट वहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं मिला था। तो अच्छा. वहाँ पे ऐसे ही सिचुएशन हुआ था। हम्म. ठाकुर मैंने भी वहाँ पे किया था ऐसे, बट ठाकुर में मुझे मिल गया था इन कैप राउंड, बिकॉज़ ठाकुर के लिए मेरा कट ऑफ वाज़ वेल इन द रेंज ऑफ दैट पॉइंट सीट इटसेल्फ। अच्छा. तो ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। इंजीनियरिंग का किसी को डाउट होगा तो मैं वैसे बता नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ 9 इयर्स हैव पास्ड सिंस दोज़ इंजीनियरिंग एडमिशंस। या. वो भी मतलब सेम था, उसमें तो कट ऑफ काफ़ी कम था मेरा, उसमें स्कोर काफ़ी कम था, तो थोड़ा ये था कि मतलब पापा को भी मैंने काफ़ी बोला था कि हेल्प करो, हेल्प करो। सो वी यूज्ड टू गो टू कॉलेज, डेली एसपीआईटी जाते थे, हरमल शाह ठाकुर में। मैंने कसम खाया था वो टाइम पे कि मैं भी एमबीए करूँगा तो एक बार मैं एडमिशन लेके रहूँगा मैं अपना। किधर? एंड जब थड़ोमल मेरा साहनी में? एमबीए का नहीं, 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 जब भी मैंने अपना इंजीनियरिंग का मैंने एक्सपीरियंस ये था कि आई हैड टू गो टू मेनी कॉलेजेस फॉर एडमिशन। आई वाज़ ट्राइंग कि बेस्ट कॉलेज इन द आई विल ट्राई टू गेट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज, बट आई अनफॉर्चुनेटली कुड ओनली गेट अ कॉलेज व्हिच वाज़ इन द टॉप 10 बट इन द 8th-9th रैंक इन मुंबई, ठाकुर कॉलेज। ठाकुर कॉलेज, अभी हाँ. तो काफ़ी अच्छा हो गया वो। या तो अभी काफ़ी उसका इंफ्रा उसका बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वीजेटीआई एंड इवन एसपीसी। आई रियली एम प्राउड ऑफ माय कॉलेज। आई काफ़ी कुछ सीखा है उससे मैंने। बट एक मैंने एमबीए में एक कसम खाई थी कि मतलब मैं सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँगा, या तो एडमिशन लूँगा ही नहीं मैं। पापा को भी एमबीए का प्राउड करूँगा, मैंने भी पेरेंट्स को भी वही प्राउड सोचा करूँगा। था. हाँ, तो मैं फिर अपना 74 रैंक आया था। बस जेबीआई में से एंड सिडनम का मेरा डाउट था, एंड सिडनम मुझे मिल गया था। 4th राउंड तक पाया था मैं। तो ठीक है. वैसे जेबीआई का भी मेरे ख्याल से अभी थोड़ा प्लेसमेंट का इशू हो गया था लास्ट ईयर। आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेनी वर प्लेस्ड, बट थोड़ा मतलब इवन दे हैड प्रॉब्लम्स बिकॉज़ ऑफ कोविड, पीपल वर नॉट हाँ, प्लेस्ड एंड पीपल हैड अ कोरोना के हार्ड वजह टाइम से हुआ गेटिंग था प्लेसमेंट्स। प्रॉब्लम. सो अ, ठीक है, मतलब आई थिंक दैट कॉलेज नेम टैग डज़ नॉट मैटर दैट मच इन द एंड। इट डज़ मैटर कि आपको मतलब थोड़ा वो भी आपने मैटर करता जॉब है कि लैंड आप कौन किया से है कि सिनेरियो। नहीं, वो मैटर करता है. हाँ, जॉब लैंड की बात नहीं है, बट अभी कोविड में तो मेरे ख्याल से कोई कुछ कर क्या ही करेगा बंदा, बिकॉज़ इतना बुरा हाल था कि सब लोग मतलब दुनिया पूरी मतलब बंद हो गई थी, तो मतलब मेरे ख्याल से एमबीए कॉलेज तो मतलब क्या करेगा यस. फिर, मतलब यस. कंपनीज़ का इतना बुरा हाल था कि ले ऑफ कर रहे थे, तो कैसे इन लोग को रिक्रूट करेंगे फिर। हमारा जॉब भी 8-9 मंथ्स के बाद में शुरू हुआ था एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी वर सपोज्ड टू स्टार्ट वर्किंग। बट फॉर्चुनेटली आई वाज़ एबल टू गेट अ जॉब एंड अ गुड जॉब, and I am really proud of myself and my company and my institute which have given me the opportunity, and I have taken that, and now my institute and my company have helped me not as an individual. Yeah, Girish. ओके. तो अभी क्वेश्चंस हो गए, तो अनाउंसमेंट करते हैं. तो मैं डिस्क्रिप्शन Yeah. में एक नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप के लिए. तो इफ एनीवन वांट्स द कंसल्टेशन कि एमबीए करना है, सीईटी में प्रॉब्लम हो रहा है घर पे, मतलब एमबीए रिलेटेड मोस्टली जो लोग एमबीए में जाना चाहते हैं उनके लिए, तो दे कैन व्हाट्सएप ऑन द नंबर. सो आई वाज थिंकिंग कि आई हैव कलीग्स जो जेबी सिडनम से पास आउट है, उनके नाम नहीं बोल सकता लेकिन दे आर रेडी फॉर दिस. तो
इफ यू वांट कंसल्टेशन यू कैन मेक अ व्हाट्सएप मैसेज करो व्हाट्सएप के नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, and then we'll see, you will get a proper consultation. And yes, there will be some charges, but एक टाइम पे तुम लोग जो पार्टी करते हो उससे तो कम ही होंगे चार्जेस. सो वॉट एवर, आजकल पार्टी में बहुत पब्लिक पैसा वेस्ट करती है. वही अगर किसी सीनियर जेबी और सिडनम के एलुमना के साथ कंसल्टेशन करोगे एक करियर गाइडेंस के लिए या फिर जो भी है, लाइक स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है या फिर जॉब में जो भी कंसल्टेशन आपको जरूरत है, तो दैट इज वर्थ इट इन माय व्यू. व्हाट डू यू से गुलजार? या बिकॉज Even एक टाइम होता Gulzar है कि might अगर be आप एक there फ्रेशर to हो consult you. I don't. We don't know. देखो एक आप फ्रेशर होते हो तो कैसा होता है कि मतलब कोई आपको मतलब जो जिसने वो चीज़ क्रॉस कर चुका है, जो वो रिवर के उस साइड पे जा चुका है, तो वो फेस से जा चुका है आगे, तो Hmm. उसे और आइडिया होता है. तो देखो हम लोग अभी वो चीज़ें आ चुके हैं बाहर. हम लोग जेबी के, तो मैं जेबी का तो नहीं हूँ, बट हाँ सिडम बेस नॉट टॉप टॉप 40 में तो आता है इंडिया में, तो हमारा उतना तो है रैंक. एंड सिडम इज ऑल्सो वेरी नाइस प्लेस. हमारी फीस कुछ 1.5 लाख 1.4 लाख थी, आई थिंक 1.4 से भी कम थी ओपन कैटेगरी में. अरे 65 ऊपर थाउजेंड पर से ईयर था अपने आई को थिंक. सिडनम वालों को, मतलब जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स अटेंड करके अच्छा स्कोर लाते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है. एक प्राइवेट फर्म देती है स्कॉलरशिप. तो फी में बहुत मतलब या सो फायदा होता है, वो अलग चीज है, लेकिन उसके बारे में कॉलेज में एडमिशन लोगे तो भी अच्छा रहेगा. मतलब अभी डिस्कस करके मतलब नहीं हाँ है. तो अभी आई एम नॉट अवेयर कि मतलब वो अभी स्कॉलरशिप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ वो भी है. बट इट इज़ मोर लाइक सिडनी with your opportunities, it is more up to you how much you take them, how you take them. Sydney is more student driven. I think JB भी इतना नहीं होगा. I think the only जेबी भी है और institute in India. सिडनम भी है. दोनों है, मतलब पूरा स्टूडेंट मतलब ही करते हैं. अपना तो पूरा स्टूडेंट नहीं किया सिडनी, है ना. हाँ मैं तो अपने विषय के बारे में यही बताऊंगा कि मेरे ख्याल से शायद मुझे जेबी जाना था बट नहीं मिला, बट आई हैव नो गिल्स अबाउट सिडनी. आई एम रियली indebted to my college, and if I have to give back I will definitely give back to my college and to the people जो freshers अभी आ रहे हैं कॉलेज में सिडनी में, या तो जिनको जा रहा है सिडनी में, उनसे कुछ मतलब मेरे से कुछ होगा तो आई विल बी हैप्पी, वेरी मच हैप्पी टू गिव माई एक्सपीरियंस, गिव माई फीडबैक. एंड बस ये है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, एंड हम्म. पीपल हैव डाउट्स, पीपल कोई हैंड होल्डिंग नहीं होती है, तो उसी के लिए भी और हम लोग अभी का टाइम ऐसा कि है गिरीश कि जैसे लोग हैं, हम लोग है कि हम लोग को पता है, वी कैन गाइड यू फॉर दैट ऑल्सो. या यस, गिरीश? अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि लाइफ हैज बिकम टफ बिकॉज ऑफ कोरोना. एंड अपना जो फिलहाल इंडिया में जो चल रहा है प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रहे हैं. अभी आरटीओ में तो मतलब मेरी मम्मी काम करती है इसलिए मुझे पता है कि उधर तो बंद ही हो गया है, पूरा भर्ती बंद हो गया. तो अभी प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है और स्ट्रेस लाइफ में हर किसी के बढ़ रहा है, तो सिचुएशन और भी डिफिकल्ट हो रहा है. तो बहुत सारे लोगों को ऐसा इमोशनल सपोर्ट का ज़रूरत रहता है. तो इसके लिए कंसल्टेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. हाँ मतलब कोई भी ऐसा है, मतलब कि किसी को कुछ रहा तो देर आर पीपल हु विल बी एबल टू हेल्प यू फॉर दैट. गिरीश इज अ वेरी नाइस पर्सन फॉर दैट. एचआर उसमें एमबीए किया हुआ है गिरीश ने, या सो मैंने डेफिनेटली साइकोलॉजी आई के थिंक गिरीश. कोर्सेज किया था एक. अच्छा, जो नहीं मुझे तूने नहीं बताया ये बार, बट आई मैंने भी विल रियली. कोर्सेज किए थे, लाइक मुझे पता चला था कि सेकेंड ईयर में कोर्सेज करने हैं. लाइक आई स्टडीड आर, फिर जस्टिस करके एक बहुत बड़ा कोर्स है हार्वर्ड का, वो भी किया था. और साइकोलॉजी रिलेटेड और दो अच्छा, कोर्सेज किए आर तो मैंने भी नहीं किया हुआ है, हालांकि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हूँ, बट थे. वेरी गुड. अगर मतलब नॉलेज मतलब जितना बड़ा हो गया उतना कम होता है, नॉलेज तो बहुत या ज़्यादा है वर्ल्ड में, बट इट इज़ मोर लाइक आई विल जस्ट से माई पार्टिंग वर्ड्स विल बी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड पीपल आर लाइक आजकल लोग खुश नहीं होते जो काम करते हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो अभी फिलहाल जो सेटिस्फाइड मतलब नहीं ऐसे होते हैं. लाइफ चल रहा है, जनरेशन हमारा ऐसा है कि वी आर वो लाइक यार आज ये चीज़ हमें और चाहिए, हमें और चाहिए. हम्म. तो बस ये है कि डोंट गेट डिसहार्टेंड, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, बट डेफिनेटली इफ यू हैव पोटेंशियल देन यू शुड aim for more, and you will यस. definitely get more if you are will for that. I will just यस. say that. And always keep on fighting in life, keep on striving for more, try to like get the most what you can. जितना हो सके ambitious रहो, जो मिले उसे लो और जो नहीं मिले उसे हासिल करो, मतलब ट्राई करो, कम से कम ये ना लगे कि यार बाद में कि यार ट्राई नहीं किया था. हम्म. मैंने तो साल घर पे था मैं, पर मैंने सिडनी में जाके पेरेंट्स को प्राउड भी किया, खुद को भी मैंने एक अचीव करके दिखाया. आई वॉज अ टॉपर, तो टॉपर बनने का अलग प्राउड एक फीलिंग होती है. 74th रैंक, 99.91%. लोग तो सोच के भी यार 99.91 क्या होता है. आई वॉज दैट, मतलब हाँ मतलब खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट वो रियलिटी थी. बट या इट्स द मेन थिंग रियलिटी. इज कि
आई रियली बिलीव लाइफ वी ओनली लिव लाइफ वंस, तो यस। इसी में जो करना है, फाइट करना है एंड अपना एक रास्ता बना के आगे बढ़ना है। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल हु हैव गिवन सीईटी एंड गुलजार, दोस थैंक हु यू वेरी मच हैव मेरे चैनल में या आने के लिए, और या जो गिरीश। भी तेरा गाइडेंस जो मेरे सब्सक्राइबर को मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एंड आई होप तू कंसल्टेशन के लिए तू भी रेडी हो जाएगा, बट सी लेट्स सी। देखेंगे वो तो, या देखेंगे, बट रियली एनी गिरीश, आप लास्ट तुम भी वर्ड, बहुत अच्छा काम लाइक कर रहे हो। कोई कोट वगैरह बोलना चाहेगा क्लोजिंग के लिए? कोर्ट तो देखो, हमारे सिख रीजन में एक पता है, गुरु गोबिंद सिंह हमारे हैं, तो उन्होंने एक हमारे लाइन कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहलाऊं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई लिव बाय, एज इन कि कुछ भी हो जाए, मतलब एक बंदा 1.25 लाख के बराबर है हमारे धर्म में कहते हैं, उसका मीनिंग मैं कहूँ तो ये है कि फाइट करते रहो लाइफ में, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उतने अमीर हो, आपको अगर उतने मतलब आपको है तो अलग बात है, बट एज अ मिडिल क्लास पर्सन आपको मतलब फिर लाइफ में फाइट करना ही पड़ेगा। बट डोंट स्टॉप फाइटिंग, डोंट क्विट, ऑलवेज कीप ऑन स्ट्राइविंग फॉर मोर एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट इन द एंड। ऐसे नहीं हुआ कि आपको नहीं मिलेगा, फिर उसके लिए एंड अच्छे से अच्छे नेक साफ दिल से करो, मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। यस।